लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर बेटर डिजाइन। सबसे पहले हम ये समझ क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन इज टेक्निक और प्रोसेस टू रिमूव redundant data in a database. Redundant, that is duplicacy. So we are going to remove data that is being duplicated over so many tables. Now, what's the need of this normalization process? Here is a diagram, infographic, which is showing what the problem is going to occur. See, you can see diagram. There are so many tables and they are having same data. Here is 101 Ramesh, 101 Ramesh. Here it is 101 Ramesh, 101 Ramesh, 101 Ramesh. Now, if I want to update the name of the Ramesh, I need to run all the update queries in all these tables, which is going to take lots of time. And for example, let's suppose कि आप भूल गए, आपने इस अलग अलग टेबल में अलग अलग वैल्यूज होल्ड कर रहा है। उस चीज को रोकने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन सीखना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन इज गुड डिजाइन, राइट डेटा, राइट डिसीजन. So what is the benefit of normalization? First is less redundancy. Second is your data is consistent. Your integrity is improved. So database normalization is systematic process used in RDBMS relational database design to organize data efficiently by dividing those data into smaller tables where the data repeatance is minimal, redundancy is minimal. You cannot remove all the duplicacy, but it is going to be minimal. Now, what is the history of normalization? In EF code gave a relational model to store. This is what written over here. And within a year, he noticed that the database that is being developed is not good. So he decided to some set of rules which we call normalization. Those rules 1NF, 2NF, 3NF. First normal form, second normal form, and third normal form. Then there were two scientists, boys, and they saw that after 3NF is more need to remove more duplicacy. So they gave one of it is called BCNF. Boys got normal form. Then in 1977 and 1979, there were two more normalization rules developed, fourth normal form and fifth normal form. We'll discuss them in detail in later videos. Now, let's talk about redundancy. Redundancy is repetence of data. There is two types of redundancy. First is row level, second is column level. In row level data, more than two rows can have the same data. Here you can see this example. 12th of December 1990, date of birth. 1 gram 12th of December 1997. इन दोनों का डेटा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट पढ़ा जिसे पीके प्राइमरी दो रूल है, एंड इट शुड बी नॉट नल। तो इस रूल से हम रो लेवल रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पर डेटा चेंज होगा। ओके, अब बात करते हैं
कॉलम लेवल रिडंडेंसी की. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इज 123 2530, then the cities और इनका स्टेट लेते हैं राजस्थान, राजस्थान जोधपुर, देन द सिटीज मे बी जयपुर, और से हमने स्टेट लिख दिया है पंजाब. यहाँ पर देखिए ये डेटा भी रिपीट हो रहा है, और ये रिपीटेंस हमें कोई ना कोई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. हम इसमें इंसर्शन करेंगे, उन प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनॉमलीज. तो एनॉमलीज का लिटरल है एबनॉर्मल कंडीशंस. ऐसी कंडीशंस जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी पर इनकंसिस्टेंट हो रहा है रिपीटेंस के कारण. मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू, हमारे पास टेबल आईडी, नेम, स्ट्रीम, क्लास टीचर. वन टू थ्री नेम इज ABC, BCA, BCA, क्लास टीचर इज X. ओके. अब अगर मुझे कोई नई स्ट्रीम ऐड करनी है, वो नई स्ट्रीम ऐड कर मुझे स्टूडेंट फिर से कोई का डेटा नहीं होगा और नई स्ट्रीम करने, यानी कि इंसर्शन के टाइम कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ रहा है. एनोमली को हम कहते हैं इंसर्शन और इंसर्ट एनोमली. Similarly, let's try to update BC. So, हमें अपडेट की क्वेरी लगानी है क्योंकि ये सिंगल अपडेट से काम हो सकता था. ये अपडेशन करने के लिए मुझे अगर इस टेबल के अंदर 1000 एंट्री की है तो मुझे 1000 एंट्री में अपडेट, ये अपडेशन में कोई प्रॉब्लम हो. अपडेट एनोमलीज. नेक्स्ट इज डिलीट. सपोज कीजिए 20 स्टूडेंट कॉलेज छोड़ दिया है, 20 स्टूडेंट अब से कॉलेज नहीं आएगा, तो हम अगर डिलीट की क्वेरी लगाते हैं तो डिलीट टेबल वेयर नेम इक्वल टू बी, मैं वो डिलीट की क्वेरी लगाती हूँ, यहाँ से एक स्ट्रीम डिलीट के साथ एक टीचर का डिलीट हो जाएगा. यानी कि डिलीट करने पर एक्स्ट्रा जो डेटा लॉस हो रहा है उसे हम कहते हैं डिलीट एनोमलीज. यही तीन मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करी है. इंसर्ट एनोमली इज समथिंग व्हेन वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट न्यू डेटा due to some constraint. Update anomalies is something when we try to update records in table and that update is going to cause data inconsistency. Delete anomaly is when we delete some data from the table and it result into the loss of another data. So for removing all those anomalies we need. Now let's talk about this normalization form. There are basically 5 normal form, then there is BCNF. So total we need to learn about 6 normalization form, starting from 1NF, then you go to 2NF, 3NF, BCNF, 4NF and 5NF. This diagram is very important and it is important to write in sequence only. Why? Because वो सारी रिलेशंस जो 2NF को फॉलो करेगी वो 1NF को फॉलो करेगी. यानी कि कोई रिलेशन 5NF के अंदर इज अ मस्ट कि वो रिलेशन 4NF, BCNF, 3NF, 2NF, 1NF के रूल को फॉलो करेगी और उसके साथ 5NF का जो रूल है उसे फॉलो करेगी.
इसलिए इस डायग्राम को इसी सीक्वेंस में बनाइए और इसी सीक्वेंस में समझिए, क्योंकि यहाँ से अगर BCNF तक पहुंचना है तो आपको डेटा 1NF 2NF और 3NF के फिल्ट्रेशन से निकाल कर ही पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत छोटा सिंपल सा बेसिक रूल है। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये कॉलम में डेटा होता है एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू आ सकती है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी, क्या मतलब है इस लाइन का? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे 0401 दिस आल्सो माय बर्थडे डेट, ओके, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी एक ही होगी। पर ऐसा होता है कि आपके पास एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस हो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट, ऐसा हो सकता है कि हॉबी उसको आपको सेट नहीं करना है। That each column in a table contains only atomic values divide कर सकते, so it's uniquely identified. Data should not contain any multi-valued attribute. Now let me explain ये क्या problem create करेगा. So example, suppose there is teacher A, teacher B and teacher. And teacher A is the subject DBMS programming also, okay? The subject and this teacher is also. Now I want to add one more course. To add one more course, मुझे मेमोरी की है टीचर आईडी, ठीक है, उसकी एंट्री कर। तो ये जो सी प्रोग्राम में लिखा है, दिस इज योर इंसर्ट अनोमली, राइट? जो सी प्रोग्राम में लिखा है इसे अपडेट करना है, और मैं यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग विद सी। क्या अपडेट की क्वेरी लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर प्रोग्रामिंग विद सी DBMS और सेकंड में शीट है, तो यहाँ अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर मैं किसी टीचर को डिलीट करती हूँ, जैसे मैं टीचर बी को डिलीट कर रही हूँ, तो उसके साथ एक कोर्स जावा जो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों अनोमलीज को एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि विद इन दिस, तो हमें इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। आप इस तरह से इंसर्ट करें टीचर आईडी, टीचर नेम, कोर्स 1, ओके, इसको लेते हैं ऐड ए, ये सर ले रहे थे DBMS प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर जो सर हैं वो सिर्फ ले रहे थे डी। ठीक है, ये वाली जो कॉलम है वो खाली है, जो डेटाबेस के अंदर लिखा जाता है। अब पता चला कि कॉलेज ने बोला हमारी एक फैकल्टी 2 कोर्स में 5 कोर्स देती है, ठीक है, टेबल ऑल्टर कर देते हैं मैम, 3 C4 एंड नाउ लेट्स डू दिस, ओके। ये जो सर एक सब्जेक्ट
ओके, तो और देखते हैं सी प्लस प्लस आपके टेबल के डेटा इसके अंदर डेटा से ज्यादा null entry रखी है, दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो जो आप फर्स्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं वो यहाँ आके फेल हो जाएगा। प्रोग्रामिंग आपको सारी में अलग अलग हो सकता है, कॉलम प्रोग्रामिंग विद सी और यहाँ कॉलम 1 में लिखा हो प्रोग्रामिंग विद सी, तो आपको अलग अलग तरह की अपडेट की क्वेरी चलानी पड़ेगी जो फिजिबल नहीं है। तो जो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन हमने वो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ से हट गया। अब बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की। सेकंड सॉल्यूशन ये कहता है कि हम इस तरीके से डेटा एंटर करें, कॉलम से कॉन्स्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइमरी की कहती है कि मैं यूनिक हूँ और नॉट नल हूँ, ये दोनों डेटा सेम। तो तीसरा सॉल्यूशन नॉर्मलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द रूल यही कहते हैं वहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां से टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है कि वो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप सेपरेटली स्टोर कीजिए किसी दूसरे टेबल में। तो अब जरा देखिए मैं एक सॉल्यूशन और सब्जेक्ट आईडी टीचर ए सब्जेक्ट आईडी सी प्रोग्रामिंग और एसोसिएट करने के लिए एक नई टेबल बना रही हूँ टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी। ओके, वो सब्जेक्ट ले रहा है 1 एंड फर्स्ट है वो सब्जेक्ट ले रहा है 2। अभी बहुत क्यूरियस क्वेश्चन आते हैं यहाँ कि मैम यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ टीचर आईडी प्राइमरी की नहीं है, यहाँ पर आपकी प्राइमरी की है कॉम्बिनेशन, इस तरह की को कहते हैं कंपोजिट की। ठीक है, यहाँ पर टीचर आईडी और स्टूडेंट आईडी मिलकर प्राइमरी की का करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए 1 1 एंड 1 2। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू सब्जेक्ट न्यू टीचर। का प्रॉब्लम आती है, चलिए सब्जेक्ट एंड ऐसे किसी टेबल को कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, इंसर्शन एनोमली इज। अब बी करते हैं, टीचर टेबल पे फर्क पड़ रहा है नहीं, क्या ये फर्क पड़ेगा, डिलीट होगा, ये डेटा डिलीट हो जाएगा और जो नेचुरली होना ही चाहिए था। ओके, अब अपडेट करते हैं, इस एक जगह अपडेट करना है, आप सिंपली क्वेरी लगाओगे अपडेट सब्जेक्ट वेयर वेयर इक्वल टू 2, दैट्स इट। या वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद सी इक्वल टू सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर तीनों एनोमलीज हमने खत्म कर दी, सिर्फ एक सिंगल रूल है, उसने हमें क्या बोला कि कोई तरह के मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आपकी टेबल के अंदर नहीं होने चाहिए। So this is what 1NF is. This is all for today. In the next session, we will be covering second NF and third normal form. Thank you.